Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anaga representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about most important topic, that is e-invoicing Tally Prime. So before moving ahead to the topic, let's have a small introduction of Rajlakshmi Solutions. So, so we are into multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations, and development. We are also into the multiple softwares. First is Tally Prime. Second is SAP Business One. Third is Bitrix 24 CRM. Fourth is Skill India. So now moving ahead with the today's topic. So now the speakers are here. So the presentation will be done by Aarti. So Aarti, are you here? Hello? Hello, Aarti? Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. And the live demonstration will be done by Aniket. So Aniket, are you here? Yes, ma'am. I am here. Good evening. Good evening. And the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yes, and I am available. Thank you. Okay. Hearty welcome all of you. So now I request Aarti and Aniket to move ahead with your presentations. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, my screen is visible. Yes, it's visible. Okay, ma'am. Thank you. Hello everyone, myself Aarti, representing on behalf of Rajlakshmi Solution Private Limited. Here is our Rajlakshmi family. Welcome to all of you. So today's topic discuss about the e-invoicing in Tally Prime. First slide, that is e-invoicing in Tally Prime. E-invoicing is a system that allow the invoicing registration portal IRP to electronically verify B2B invoices. According the e-invoicing in Tally Prime provide you with a smooth experience to configure and generate e-invoice for your business. That is purpose of e-invoicing. E-invoicing help you with data reconciliation and accuracy during manual data entry. It allowed interoperability across businesses. You can track the invoicing in real time. The invoicing details auto-populated on tax return forms and e-way, making the tax return process easy. Can you generate date? There is windows of 24 hours a day to generate an IRN, and IRN cannot be obtained for backdate invoices. What is the limit for invoice in GST? सबसे पहले जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर था उनके लिए सबसे पहले 1 अक्टूबर 2020 को इनवाइस उसके बाद में जिनका टर्नओवर 15 करोड़ के ऊपर था उनके लिए 1 अप्रैल 2021 को इनवाइस एप्लीकेबल हुआ था. उसके बाद में जिनका टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर था उनके लिए 1 अप्रैल 2020 को इनवाइस एप्लीकेबल हुआ था. अभी लेटेस्ट आया है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होगा उनके लिए 1 अक्टूबर से इनवाइस एप्लीकेबल होने वाला है. हाउ टू रजिस्टर टैली as your GSP in IRP.
is and simple process to register Tally as your GSP in the IRP. The following screenshot give an idea on of the process. आपको सबसे पहले ई इनवाइस का पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्टर सबसे पहले आपको AIP रजिस्टर करने के लिए आपने जो लॉगिन किया है पोर्टल वहाँ पे AIP यूजर क्रिएट करना है, तो क्रिएट AIP यूजर पे जाना है। उसके बाद में जो आपका रजिस्टर मोबाइल आईडी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ डाल के वेरीफाई करना है। उसके बाद में आप टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करना है और यूजर नेम और पासवर्ड डाल के सबमिट करना है। AIP आरती आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। Okay. How to configure e-invoicing in Tally Prime? Configure e-invoicing in Tally Prime is a very easy one-time process that can be done in under a minute. First, आपको invoice Tally Prime में activation करने के लिए three step है। तो सबसे पहले first, you fill 11 from any screen in Tally Prime and go to step first or select alter under master in gateway of Tally and select GST detail and go to third step. Second, on the screen which opens up on the right side under taxation, you will see enable goods and services tax GST. Seeing you have already configured GST, it will be showing yes. Double click on the same yes or click once and press enter. Third, the GST configuration screen will now open. One on the right hand side will be see two options: e-way bill applicable and below that e-invoicing applicable. You can see set both to yes or only e-invoicing depending upon the applicability to your company. Once you set it to yes, you have to fill in the required information such as bill from place etc. Process press Ctrl A to save and exit. The screenshot below shows reward details. Now your Tally Prime is e-invoicing ready. आपका e-invoice अभी एक्टिवेशन होने के बाद आप e-invoice जनरेट कर सकते हैं. So that's it from my side. Thank you so much all of you. I would like to request Mr. Aniket for the live demo session. Thank you, Arti ma'am. That was a nice presentation from you. Hello everyone. My name is Aniket Chavan, presenting from Raj Lakshmi Solution Private Limited. So जैसे कि आरती मैम ने आपको बताया अभी ई इनवॉइसिंग और उसके साथ साथ ई-वे बिल दोनों आप टैली प्राइम में से ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं विदाउट आप पोर्टल पे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट आपको एक वन टाइम उसका सेटअप करना है. वो आपका सेटअप प्रॉपर हो चुका अगर हो आपने किया है तो आप डायरेक्टली टैली में से ई इनवॉइस उसके साथ ई-वे बिल आप जनरेट कर सकते हैं. उसकी प्रिंट वगैरह सब आपको टैली में से ही आपको मिल जाता है. सो उसका हम सबसे पहले एक्टिवेशन उसका कॉन्फ़िगरेशन और जैसे आरती मैम ने आपको बताया पोर्टल का रजिस्ट्रेशन एपीआई यूजर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने वाले हैं. सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टैली प्राइम में उसका कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे करना है ई इनवॉइसिंग या फिर ई-वे बिल का. तो सबसे पहले उसका एक्टिवेशन हमें टैली प्राइम में करके रखना है, जरूरी है. F11 यहाँ पे कंपनी ओपन करके हमें यहाँ पे F11 प्रेस करना है. यहाँ पे जीएसटी में हमें जीएसटी का ऑप्शन हमें इनेबल करना जरूरी है. कंपनी की जीएसटी की पूरे प्रॉपर डिटेल यहाँ पे फिल होनी जरूरी है. जीएसटी नंबर प्रॉपर यहाँ पे होना चाहिए. उसके बाद अगर आपको ई-वे बिल भी एप्लीकेबल है इट्स डिपेंड ऑन कंपनी. अगर ई-वे बिल एप्लीकेबल है तो इसे यस करना है. अगर
एप्लीकेबल नहीं है, ये बिल नहीं बनना चाहते तो इसे नो रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है ई इनवॉइस एप्लीकेबल, इसे हमें इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद जैसे हम इनेबल करते हैं, हमें यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम का ऑप्शन होता है। जैसे अगर आपका टर्नओवर 10 से अबव जाता है, 1 अक्टूबर से आपको इनवॉइस कंपलसरी बनाना पड़ेगा एज पर गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन अभी आया है उसके अनुसार। तो अगर आपका 1 अक्टूबर से इनवॉइस एप्लीकेबल है तो यहाँ पे 1 अक्टूबर आपको डालना है। नेक्स्ट यहाँ पे डालना है आपको बिल फ्रॉम प्लेस, जहाँ से आप बिल भेज रहे हैं, मतलब आपके कंपनी का प्लेस या फिर सिटी का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिफॉल्ट पीरियड फॉर इनवॉइस रिपोर्ट। अभी जैसे ये जो पीरियड दिया है, टैली में एक रिपोर्ट दिया है ई इनवॉइसिंग का, उसमें आपको डिफॉल्ट कितने दिन का आपको रिपोर्ट देखना चाहते हैं, वो डेज आपको यहाँ पे पर्टिकुलर डेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। जैसे अगर आप ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे अगर कोई रिपोर्ट ई इनवॉइसिंग की रिपोर्ट देखना चाहते हो, तो पोर्टल पे बाय डिफॉल्ट आपको 3 ही दिन का रिपोर्ट दिखता है, स्पेसिफिक 3 दिन का आपको रिपोर्ट वहाँ पे पोर्टल पे दिखता है। लेकिन टैली में ही आपको 31 डेज का ऑप्शन दिया है, तो 31 डेज से ज्यादा आप यहाँ पे डेज सेट नहीं कर सकते, मैक्सिमम यहाँ पे 31 डेज आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है सेंड ईओ बिल डिटेल विथ ई इनवॉइस। अगर आप ईओ बिल और ई इनवॉइस दोनों साथ में जनरेट करना चाहते हैं तो उस समय आपको ये वाला ऑप्शन इनेबल करके रखना है। इसे हम सेव कर देते हैं, इसे भी हम सेव कर देते हैं। ये हो गया टैली का कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आते हैं पोर्टल पे हमें कैसे यूजर सेटअप करना है, उसका एपीआई यूजर कैसे क्रिएट करना है। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। हमारा रजिस्ट्रेशन का मैं आपको प्रोसेस, इन शॉर्ट प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। कोई वैलिड आईडी पासवर्ड मेरे पास नहीं है तो मैं एक इमेज थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको सबसे पहले एक साइट ओपन करनी है ई इनवॉइसिंग की, जो कि साइट आपको मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया है einvoice1.gst.gov.in। इस साइट को जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, पोर्टल लॉगिन और ई इनवॉइस इनेबलमेंट। तो आपको पोर्टल लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉगिन पे क्लिक करना है। आपकी कंपनी की यहाँ पे जीएस टैक्सेशन डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में ओटीपी का ऑप्शन आता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है। ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद आपको नया यूजर आईडी पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आता है। वो यूजर आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे उस यूजर आईडी पासवर्ड को आप क्रिएट करते हो, आपको उस यूजर आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन बटन क्लिक करके लॉगिन पोर्टल लॉगिन करना है ई इनवॉइसिंग का। जैसे ही आपका पोर्टल लॉगिन होता है, आपको इस तरीके से एक स्क्रीन दिखती है ई इनवॉइस पोर्टल की। जिस जीएसटी नंबर से आप लॉगिन कर रहे हैं, उसका ओवरऑल आपको ई इनवॉइसिंग का रिपोर्ट यहाँ पे आपको पोर्टल पे दिखता है। इस पोर्टल पे आपको ओवरऑल टैली की, मतलब टैली में से आप जितने भी इनवॉइस जनरेट करेंगे वो डायरेक्टली इस पोर्टल पे अपलोड होने वाले हैं। यही आपका R1 में भी आपको यही इफेक्ट करने वाला है। यहाँ पे ओवरऑल आपने कितने इनवॉइस जनरेट किए है, कितने कैंसिल किए, वो सब आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिलती है। ये पोर्टल का पार्ट है। यहीं पे एक ऑप्शन दिया है क्रिएट एपीआई यूजर। अभी एपीआई यूजर यहाँ पे क्या है, ये मतलब ये वर्क कैसे करता है। एक्चुअली एपीआई यूजर यूज होगा टैली को पोर्टल से लिंक करने के लिए थ्रू जीएसपी पोर्टल। टैली का एक जीएसपी पोर्टल होता है, उस जीएसपी पोर्टल को आरपी पोर्टल से, मतलब ई इनवॉइस पोर्टल से लिंक करने का काम एपीआई यूजर करता है। एपीआई यूजर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है पोर्टल पे, जो कि स्पेसिफिक यूज होगा ओनली टैली के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऐसी इस तरह की स्क्रीन दिखेंगी। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है थ्रू जीएसपी पोर्टल के थ्रू हम यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं टैली को पोर्टल से। नेक्स्ट यहाँ पे जो टैली का जीएसपी पोर्टल का जो नाम है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे हमें एपीआई यूजर का यूजर आईडी पासवर्ड हमें यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन दिख जाता है। वो यूजर आईडी पासवर्ड हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड से सेम अगर है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको
अलग अलग रखना है तो हम यहाँ पे अलग अलग भी रख सकते हैं, लेकिन एपीआई यूजर में यूजर नेम से पहले एपीआई अंडरस्कोर ये हमेशा मतलब कंपलसरी रहेगा ही, जो हमें टैली में ये स्पेसिफिक ओनली टैली में ही यूज होने वाला है। तो ये सब यूजर क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे टैली में आना है। आपका यूजर वगैरह सब प्रॉपरली क्रिएट करने के बाद टैली में हम जैसे नॉर्मली बिल क्रिएट करते हैं वैसे ही हमें बिल यहाँ पे क्रिएट करना है। हमने F11 में ऑलरेडी ई इनवॉइसिंग का कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है, तो उसके बाद हम बिल क्रिएट करते हैं। कैसे हमें टैली में से ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं वो मैं आपको प्रोसेस यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको पार्टी सेलेक्ट करनी है। मेक श्योर कि आप बिल बनाने से पहले पार्टी का एड्रेस, उसका पिन कोड, उसका जीएसटी नंबर, ये सब डिटेल प्रॉपर होनी जरूरी है। आप ये सब क्रॉस चेक करके कंफर्म कर सकते हैं बिल बनाने से पहले, क्योंकि अगर ये मैंडेटरी डिटेल आपने प्रॉपर फिल नहीं की है या फिर कुछ डिटेल इनवैलिड है तो आपका इनवॉइस जनरेट टैली में से नहीं होगा, आपको एरर दिखाता है वो। उसके बाद स्टॉक आइटम में भी उसका जीएसटी नंबर, जीएसटी की पूरे डिटेल यहाँ पे प्रॉपर होनी जरूरी है, जिसका जैसे कि उसका HSN नंबर, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है, टैक्स रेट आपने प्रॉपर डाला है नहीं डाला है वो सब आपको देखना जरूरी है, प्रॉपर डालना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं डेमो आइटम मैंने यहाँ पे लिया है। ये आइटम हम यहाँ पे इस पार्टी को सेल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 10 क्वांटिटी लिया है। यहाँ पे CGST SGST में इस आइटम को अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे 1 अक्टूबर से इनवॉइस एप्लीकेबल हो रहा है, तो मैं 1 अक्टूबर के बाद जितने भी बिल बनाऊंगा वहाँ पे मुझे ये वाला एक न्यू ऑप्शन यहाँ पे दिखता है, प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल। यहाँ पे हम इसे इनेबल करते हैं। इस विंडो पे हमें ओनली पार्टी का प्लेस, जो सिटी है, प्लेस है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस। जैसे हम यहाँ पे इसे मेंशन करते हैं, इसे बिल को सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद हमें ऐसा ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। हम यहाँ पे इसे इनेबल यस करेंगे। यस करते ही हमें यहाँ पे ई इनवॉइस लॉगिन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमें डालना है एपीआई का यूजर आईडी पासवर्ड। ध्यान रखिए लॉगिन का आईडी, ई इनवॉइस पोर्टल का लॉगिन का आईडी पासवर्ड अलग है और एपीआई का आईडी पासवर्ड अलग रहेगा। जो एपीआई का रहेगा वही आपको यहाँ पे डालना है ई इनवॉइस बनाने के लिए टैली में। जैसे आप यहाँ पे एपीआई का यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं जो कि हमने अभी पोर्टल से क्रिएट किया है, आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा और प्रिंट आपको इस तरीके से टैली में देखने को मिल जाएंगे। आपके प्रिंट पे टॉप कॉर्नर पे एक बारकोड जनरेट होता है ई इनवॉइसिंग का। उसके साइड में यहाँ पे आईआरएन नंबर जनरेट होता है 64 डिजिट का, एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट आपको यहाँ पे प्रिंट में मिल जाती है। ये इस तरीके का आपको यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, आपने ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद अगर आपको ई इनवॉइस कैंसिल भी करना है तो वो भी आप डायरेक्टली टैली में से कैंसिल कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज के लिए पोर्टल पे यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, पूरी चीज आपको टैली में ही प्रोवाइड हो जा रही है। तो जैसे आपको कोई ई इनवॉइस आपने जनरेट किया है, अगर आपको उसे कैंसिल करना है वो प्रोसेस में आपको एक इमेज थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे टैली में आपको मैं दिखाता हूँ, ई इनवॉइसिंग की एक यहाँ पे रिपोर्ट दी है। हमें गो टू ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें टाइप करना है ई इनवॉइस। हमें यहाँ पे ओवरऑल 1 अक्टूबर का मैंने यहाँ पे डेट डाला है, तो 1 अक्टूबर में मेरे जितने भी बिल जनरेट हुए यहाँ पे आप पीरियड चेंज करके भी रिपोर्ट देख सकते हैं। जितने भी बिल हमने यहाँ पे जनरेट किए हैं या फिर जो पेंडिंग में है, जितने हमें कैंसिल किए, वो टोटल हमें यहाँ पे रिपोर्ट में दिख जाते हैं। जैसे यहाँ पे सेक्शन, अलग अलग सेक्शन क्रिएट होते हैं। पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विथ इनवॉइस सिस्टम, अभी ये इस इनवॉइस को हमने बनाया है लेकिन इसका ई इनवॉइस अभी तक नहीं बना है, तो यहाँ पे पेंडिंग फॉर आईआरएन जनरेशन में ये सेक्शन में आया है। इसमें इनकम्प्लीट HSN नंबर, इसका HSN नंबर हमने नहीं डाला है। जो एरर्स में है, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है ई इनवॉइसिंग के लिए, वो अगर नहीं डाली है तो वो भी हमें यहाँ पे रिपोर्ट में दिख जाते हैं। या फिर उसके अलावा जो हमने जनरेट किए हैं अलग से, जो हमने कैंसिल किए हैं, उसका भी अलग अलग यहाँ पे सेक्शन क्रिएट होता है।
उस सेक्शन में हमें यहाँ पे और रिपोर्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें अगर कैंसिल करना है तो जनरेटेड का जहाँ पे हमें क्या ऑप्शन मिलता है, जनरेटेड का ये वाला आयरन जनरेटेड का हमें यहाँ पे सेक्शन अलग से मिलता है, जिसमें हमें टोटल जितने भी हमने ई इनवॉइस जनरेट किए हैं पर्टिकुलर पीरियड में वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसे हमें एंटर करना है। जैसे एंटर करते हैं हमें यहाँ पे जितने भी बिल हमने ई इनवॉइस जनरेट किए हैं, आयरन जनरेट किए हैं, वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। इसमें से आपको जो भी इनवॉइस कैंसिल करना है, ई इनवॉइस कैंसिल करना है, उसे जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद टैली में राइट हैंड साइड में F10 का ऑप्शन दिया है, F10 कैंसिल आयरन का, एक उसका शॉर्टकट की F10 है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है F10 कैंसिल पे क्लिक करके आपको इस तरीके की एक स्क्रीन आती है। यहाँ पे हमें कैंसिलेशन का रीजन डालना है, हम इस बिल को कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। जैसे हमें कुछ डाटा Aniket, your voice is not clear. कि या फिर ऑर्डर कैंसिल हो गई है। Aniket, एक बार आप अपना माइक Hello. चेक करें प्लीज। Aniket, you want to check your mic. हेलो सर अभी आ रही है आवाज? या अभी आ रही है सर आवाज? हाँ जी आ रही है यस यस सॉरी एवरीवन। हाँ जैसे हम कैंसिलेशन का यहाँ पे रीजन प्रोवाइड करते हैं टैली को, तो जो जनरेटेड का सेक्शन में जो बिल था हमारा वो पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन के सेक्शन में, अलग सेक्शन में जाता है, कैंसिलेशन के सेक्शन में जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होता है जब तक हम उस इनवॉइस को ई इनवॉइसिंग पोर्टल से एक्सचेंज नहीं करते हैं। तो एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे टैली में एक्सचेंज का एक ऑप्शन दिया है Alt Z, वहाँ पे ई इनवॉइस सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन दिया है। जैसे हम यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जितने भी बिल हमारे यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए हमने यहाँ पे डाले हैं वो हमें यहाँ पे दिखते हैं, और जितने हमारे जनरेशन के लिए भी पेंडिंग है वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बल्क में जनरेट करना है तो जो भी बिल हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसे हमें सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरीके की स्क्रीन दिखती है, जो बिल हमने सेलेक्ट किए, कैंसिलेशन के लिए हमने कितने सेलेक्ट किए, जनरेशन के लिए कितने सेलेक्ट किए, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इसे हमें यस करना है। एपीआई का यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना है, और हमारे जितने भी कैंसिलेशन के हैं या फिर जनरेशन के लिए हमने बिल सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे इस विंडो पे, वो हमारे कैंसिल या फिर जनरेट हो जाएंगे। ये बल्क में भी आप जनरेट या स्क्रीन से कर सकते हैं। जैसे वो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे पेंडिंग में से वो इनवॉइस मूव होकर आयरन कैंसिल के सेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको एक कुछ कंडीशन ई इनवॉइसिंग की बताना चाहूंगा कि अगर आपने कोई ई इनवॉइस टैली में से जनरेट कर दिया है तो ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद आप उस वाउचर में कुछ भी चेंजेस अल्टर या फिर कुछ वैल्यू, कुछ अमाउंट चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले जो भी वैल्यू, पहले वाले चेंजेस के साथ जो चेंजेस हम यहाँ पे टैली में डालेंगे वो पोर्टल पे ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो पोर्टल पे अपलोड हुआ है वो डायरेक्टली आपके R1 पे रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपको उस इनवॉइस में कुछ अल्टर करना भी है तो आपको उस इनवॉइस को पहले कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको अभी कैंसिलेशन की प्रोसेस बताई है, लेकिन कैंसिलेशन के लिए आपको उस इनवॉइस को 24 आवर्स के अंदर ही कैंसिल करना पड़ेगा। जब से हमने इनवॉइस बनाया है उस टाइम से लेकर 24 आवर्स के अंदर उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। हेलो, इनकेस अगर आपके 24 आवर्स के बाद आपको लगता है कि उस वाउचर में आपको कुछ चेंजेस करना पड़ता है, तो उस वाउचर को हमें कैंसिल ना करते हुए, कैंसिल तो वैसे वो 24 आवर्स के बाद होगा भी नहीं, तो उस वाउचर के अगेंस्ट हमें क्रेडिट नोट पास करनी पड़ेगी। क्रेडिट नोट पास करने के लिए हम सेम प्रोसेस यहाँ पे क्रेडिट नोट में भी फॉलो करना होगा आपको। यहाँ पे पार्टी डिटेल यहाँ पे डालनी है,
और जैसे हमने सेल्स में ई इनवॉइस जनरेट किया है, वैसे हमें क्रेडिट नोट का भी ई इनवॉइस जनरेट करना है, ताकि उस वाउचर के अगेंस्ट, ताकि जो उस वाउचर की जो अमाउंट यहाँ पे पोर्टल पे अपलोड हो चुकी है, वो अमाउंट लेस हो जाए, और अब उसके बाद हम नया वाउचर जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन थी वाउचर ई इनवॉइस जनरेशन की। So that's it from my side. Thank you everyone. Okay, thank you, Aarti and Aniket, for your presentation. So it's a time for overview of the today's session. So it's over to you, Bhagwati sir. Yeah, hi. So, good evening, everyone. Myself is Bhagwati. So today's session is a more, demanded topic like e-invoicing. So everyone aware about the e-invoicing. It's again, that limit is again changed, and e-invoice is 10 crores businesses they done after the 2017 to till date. So they have need a e-invoicing in the Tally Prime. So this is a mandatory for that particular business organization. They cross 10 crore business, 10 crore turnover after the 2017. So in terms of the e-invoicing, so most of the people are using Tally Prime. So जो भी लोग Tally Prime use कर रहे हैं या Tally ERP9 में है, तो they can easily going upgrade that in the Tally Primes. And ये is a very small setup जहाँ पर एक proper configuration करना है, जो कि आपके जीएसटी पोर्टल में जाके करने हैं, जहां पर आपको ई इनवॉइसिंग के लिए आपको खुद से एक लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने हैं, और उसके साथ साथ आपको एपीआई के थ्रू जो आपका टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एपीआई है उसका कॉन्फ़िगर कर लेना है, एंड देन यू कैन लॉग इन द टैली सिस्टम। जहां पर आज तक आप जो इनवॉइसिंग जो करते थे, नॉर्मल इनवॉइसिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, सेम वे में सेम प्रोसेस में ही इनवॉइस होगा। प्रोसेस में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ वन टाइम सेटअप है। जो वन टाइम सेटअप है ये बहुत ही केयरफुली करना होगा और बहुत ही प्रॉपर प्रोफेशनल से करवाना होगा, ताकि कोई भी एक टैली प्रोफेशनल आपका सेटअप कर सके। आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन अगर हुए तो डेफिनेटली आप हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, वन टाइम सेटअप है। उसके बाद में जो नॉर्मल इनवॉइस आप बना रहे हैं उसको इनवॉइस को बनाना है और इनवॉइस को एक्सचेंज करना है। जो आपने देखा सेंड इनवॉइसिंग टू द जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल्स, जहां पर जितने भी आपने इनवॉइस जनरेट किए हैं एक साथ पूरे इनवॉइस को एक साथ में इवनिंग में आपको अगर आईआरएन जनरेट करना है तो यू कैन डू। अगर मान लीजिए आपको एक एक इनवॉइस को जनरेट करना है तो सेम टाइम में आप वो भी कर सकते हैं, बल्क भी कर सकते हैं, वन टू वन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत यूनिक चीज जो आपको अनिकेत ने बताई कि आप कोई भी इनवॉइसिंग में चेंजेस 24 आवर्स के अंदर ही कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जब आपको ई इनवॉइसिंग लागू नहीं था, अप्लीकेबल नहीं था, उसमें आप पूरे महीने में जब तक आप GSTR1 रिटर्न नहीं फाइल कर रहे थे तब तक आप चेंज कर लेते थे और कस्टमर को अपडेट कर देते थे। लेकिन जब से आपका एप्लीकेबल ई इनवॉइसिंग हो गया है तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाटएवर यू चेंजेस यू वांट टू डू इन योर इनवॉइसिंग, तो डेफिनेटली यू डू इन द विद इन 24 आवर्स, और उसके बाद में आप वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में दूसरा सॉल्यूशन आपके पास है क्रेडिट नोट का, कि आपको पहले वो इनवॉइस का क्रेडिट नोट पास करना, फिर एक नया इनवॉइस जनरेट करना जो अपडेटेड इनवॉइस होगा, अब फिर उसको पोर्टल पर सेंड करना। तो दिस इज द आइडिया ऑफ द इनवॉइसिंग मैकेनिज्म इन द टैली प्राइम। सो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है ई इनवॉइसिंग, सो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। हमारे कुछ नंबर्स ऑलरेडी आपके चैटबॉट में डाल के रखे हैं, आप वहां पर आप जाइए, उस नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको जूम की चैटबॉट में है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको ई इनवॉइसिंग इम्प्लीमेंटेशन में पूरी हेल्प करेंगे, गो लाइव करके देंगे, ट्रेनिंग देंगे। इसके साथ साथ ये जितने भी इनवॉइसिंग के पहले भी हमने सेशंस किए हैं और आज का भी सेशन जो है आपको आने वाले समय में यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल के थ्रू इस पर्टिकुलर वीडियोस को देख करके भी इनवॉइसिंग अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा यूट्यूब का जो चैनल है वो चैटबॉट में हमने लिंक डाल के रखा है, आप उस पर अभी क्लिक कर लीजिए
क्योंकि आफ्टर दिस सेशन ये लिंक आपको चूंकि सेशन के बाद नहीं मिल पाएगा, तो आप लिंक क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी नए नए अपडेट आ रहे हैं वो सभी अपडेट टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप उसको का एडवांटेज आप ले पाएंगे। सेकेंड थिंग, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो जस्ट लाइक एक एकेडमी की तरह काम कर रहा है, जहाँ पर टैली के हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े फीचर्स को हमने काफी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप हर एक टॉपिक वाइज आप अपने फीचर्स को अपने टैली में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को स्मूथर रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास कोई भी अगर नया एम्प्लॉय आ रहा है, उसको अगर टैली का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो भी इसको अच्छे ढंग से ट्रेनिंग ले सकता है अपने टाइम कंफर्ट जोन के हिसाब से, इवनिंग, लेट इवनिंग, मॉर्निंग, व्हाटएवर टाइम, बिकॉज दैट इज अवेलेबल इन द यूट्यूब चैनल्स। सो इसके एडवांटेज आप लीजिए। इसके साथ साथ ई इनवाइजिंग और वेरियस टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस, जो कस्टमाइज सॉल्यूशंस है या एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सर्विसेज का जो पार्ट है, इन सभी चीजों में हमारी तरफ से काफी अच्छे ऑफर्स आपको टाइम टू टाइम रहते हैं। इस मंथ में भी हमारा ई इनवाइजिंग के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बेस्ट प्राइस चल रहा है। इसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग पेमेंट फॉलोअप मॉड्यूल्स पे हमारा एक बेस्ट प्राइसिंग का ऑफर है, जहाँ पर देयर इज अ गुड नंबर्स ऑफ द डिस्काउंट, तो उसके एडवांटेज भी आप हमसे ले सकते हैं। तो यू कैन कनेक्ट विथ आवर टीम and your account manager. They are working with you in the from Rajya Lakshmi Solutions. You can also connect with that particular number that is populated in the Zoom chatbot. So you can connect anytime, and definitely it's our pleasure to support you. So that's it from my side, Anga. It's over to you. Thank you. Thank you so much, sir. So if anyone have any questions related to the today's topic, you can just mention it in the chat box, please. So please check once if there is any questions. Yeah, Anga, I'm checking over here. Yeah. You can also erase the hand. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज Yes. कर सकते हैं, तो हम आपको एक्सेस दे देंगे, तो you can also communicate with the voice. So Anga, there is not any questions right now. Okay. So Just a minute, Anga. yeah. We have one question, e-invoice and e-way bill दोनों साथ में कैसे बनाए, वो नहीं बताया। Okay. Of course, sir. E-invoicing का सेशन है ये। Today this is a session for the e-invoicing. ई-वे बिल का सेशन ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमारे नंबर्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, या आपका नंबर हमारे चैटबॉट में डाल दीजिए, तो हम ये पर्टिकुलर जो सेशन है आपके लिए अरेंज कर देंगे, और आपको ई इनवॉइसिंग और ई-वे बिल दोनों साथ में कैसे बनेगा ये हम आपको इंडिविजुअली बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। So audience, please, if you have any questions, you can put them in the message and you can raise the hand. No. So Anga, I think there is not Okay, sir. you can this is the right time to wind up the session, so you can Okay. proceed for the window. Thank you. Okay. Okay. So soon this session will be uploaded in our YouTube channel. So be connected to our social media to get all the latest updates of Tally Prime. So thank you so much for joining us for the today's session. So now we'll wind up the session. Thank you, everyone. Thank you, everyone. See you soon in the next session. Thank you.